شہر میں ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ تیز ہو گیا۔ ایک روز میں سب سے زیادہ 17 کیسز سامنے آئے۔ ضلعی ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق لاہور میں رواں برس ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 167 ہو گئی۔ گزشتہ 20 روز کے دوران ڈینگی کے 74 کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، لاہور میں ڈینگی مچھر کا پھیلاؤ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے اور لاہور میں رواں برس ایک روز کے دوران سب سے زیادہ ڈینگی کیسز سامنے آئے ہیں۔ لاہور ہیلتھ اتھارٹی کے مطابق لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی کے 17 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور لاہور میں رواں برس جو ہے وہ ڈینگی کے 167 مریض جو ہے وہ رپورٹ ہو چکے ہیں۔ ضلعی ہیلتھ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ لاہور میں گزشتہ 20 روز کے دوران 74 ڈینگی کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور گزشتہ 3 روز میں ڈینگی کے 27 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ لاہور میں گزشتہ روز 1030 مقامات پر جو ہے وہ ڈینگی لاروا پایا گیا اور لاہور میں رواں برس جو ہے 68,105 مقامات سے ڈینگی کا لاروا تلف کیا گیا تھا۔ لاہور میں ڈینگی لاروا کی موجودگی پر گزشتہ روز 997 مقامات کو نوٹسز جاری کیے جا چکے ہیں اور شہر میں گزشتہ روز 33 افراد پر ڈینگی لاروا ملنے پر FIR بھی درج کی جا چکی ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ سجاد۔ نگران وزیراعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے مسیحی برادری کے وفد کی ملاقات۔ نگران وزیراعلیٰ کی مسیحی برادری کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہتے ہیں جڑاوالا واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ قائد اعظم کے پاکستان میں ایسے افسوسناک واقعات کی کوئی گنجائش نہیں، مل کر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے جامع پالیسی مرتب کرنی ہوگی۔ مزید تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز لیاقت علی سے۔ لیاقت، آگاہ کیجیے۔ بالکل، نظام وزیر پنجاب محسن نقوی سے آج مسیحی برادری کے رہنماؤں کے نمائندہ وفد نے وزیر اعلیٰ میں ملاقات کی۔ اس موقع پر محسن نقوی نے جڑاوالا واقعہ کی مذمت کی اور کہا یہ ایک بڑا سانحہ ہے اور اس حوالے سے اہم شواہد مل کے اور ویڈیوز بھی سامنے آئی ہیں۔ شخصوں کو گرفتار کر کے قانون کے گھیرے میں لائیں گے اور سانحہ کے ذمہ دار قانون سے نہیں بچ سکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جڑاوالا سانحہ کے ذمہ دار کیسے کردار تک پہنچانے کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکا جائیں گے اور مسیحی برادری کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اس دلخراش واقعے کو بھول نہیں سکتے اور مستقبل میں ایسے سانحات کو روکنے کے لیے سب کو مل کر مؤثر اقدامات کرنے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو نقصانات ہوئے ان کو پورا کیا جائے گا، گرجا گھروں کو جلد اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے لیاقت علی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان سے ایشیائی ترقیاتی بینک کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے۔ ڈائریکٹر بائی واٹر اینڈ اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر آفس نے وفد کی قیادت کی۔ ملاقات میں پنجاب میں جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ شہری سہولیات کے مختلف منصوبوں میں ایشیائی ترقیاتی بینک کا تعاون قابل تعریف ہے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین، آگاہ کیجیے گا اس بارے میں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے آج گورنر ہاؤس لاہور میں ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر برائے واٹر اینڈ اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر آفس چیئرمین ہوانگ نے کی قیادت میں ایک وفد نے گورنر ہاؤس ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں پنجاب میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے کہا کہ حکومت مختلف ترقیاتی منصوبوں میں ایشیائی ترقیاتی بینک پنجاب کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ شہری سہولتوں کے مختلف منصوبوں میں ایشیائی ترقیاتی بینک کا تعاون قابل تعریف ہے۔ گورنر نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کا بھاولپور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کو اپ گریڈ کرنے پر تعاون اور سالڈ ویسٹ سے بجلی پیدا کرنے کا پروجیکٹ اچھا منصوبہ ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت پنجاب ایشیائی ترقیاتی بینک کے تعاون سے ملک میں معاشی ترقی اور سماجی خوشحالی کے اصول کے لیے ڈھانچہ جو ہے اصلاحات کے ذریعے پائیدار انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کرنے کی خواہش مند ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بات پر زور دیا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک مقامی حکومتوں کے داروں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے گرانٹس کی شکل میں مدد کرے تاکہ منصوبوں کو کامیاب طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچا سکے۔ گورنر نے کہا کہ ایشیائی ترقیاتی بینک سے سیلاب زدہ علاقوں میں صحت، واٹر مینجمنٹ، اربن ڈیولپمنٹ سیکٹر میں ترقیاتی منصوبوں کے تعاون اور اشتراک چاہتے ہیں۔ اس موقع پر ایشیائی ترقیاتی بینک کی ڈائریکٹر برائے واٹر اینڈ ڈیولپمنٹ سیکٹر آفس چنگمن نے کہا ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک ADP پاکستان کی اقتصادی بحالی اور ترقیاتی منصوبوں کی حمایت جاری رکھے گا اور وفد میں سیکٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نارتھ، اس کے علاوہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی لی سنگھ چونگ سیکرٹری اور دیگر اس موقع پر موجود تھے۔ جی آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ تو خبر یہ ہے، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی پنجاب کے صوبائی حلقوں کے یوتھ کوارڈینیٹر سے ملاقات ہوئی، نوٹیفیکیشن تقسیم کیے۔ اس موقع پر مریم نواز کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی اصل طاقت نوجوان ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ترقی ان کا حق ہے۔ پارٹی ہر سطح پر
यूथ और इसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जा रहा है, सियासी पार्टीज़ अपने कारकुनान को मुनज़्ज़म करने के हवाले से काम कर रही है और इस हवाले से ये इजलास हुआ है और मरीम नवाज़ का ये कहना था कि नौजवानों को हर सतह पर मौक़े दिए जाएंगे। तफसीलात के लिए बात करते हैं डेप्यूटी ब्यूरो चीफ हसन रज़ा से। जी हसन, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने पंजाब के सूबाई हलकों के यूथ कोऑर्डिनेटर्स को नोटिफिकेशन तकसीम किए। मुस्लिम लीग नून के हवाले से मरियम नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि असल ताकत मुस्लिम लीग नून की जो नौजवान हैं वो है। उन्होंने कहा कि पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है और ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। अब वो दौर है जो नौजवानों का है। उन्होंने कहा कि पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ाने का मौका देगी। आपने पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाना है। मुस्लिम लीग नून हर दौर में लैपटॉप, इंडोरमेंट फंड, यूथ लॉन प्रोग्राम और खेलों के मैदान में नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके फराहम कर रही है। मुस्लिम लीग नून के जितने भी जवान हैं ये हर मौके पर फ्रंट लाइन जो है वो रोल अपना इनका किरदार रहा और किरदार अदा करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने जब भी नौजवानों को कॉल दी उन्होंने अपने कायद के आवाज़ पर लबैक कहा। नौजवान तैयारी कर ले, मियां नवाज शरीफ जल्द आपके दरमियान होंगे। उन्होंने कहा कि फितना पार्टी ने नौजवानों के ज़हनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया है। इसका अमली मुजाहरा कौम ने 2014 के धरनों और 9 मई के वाक़यात की सूरत में देख चुकी है। उन्होंने कहा कि फितना फसाद ग्रुप ने पाकिस्तान में डंडे और गाली की सियासत को फरोग दिया, लेकिन मुस्लिम लीग नून जो है ये डंडे और गाली की सियासत की बिल्कुल मुखालिफ है और नौजवानों को तरगीब देती है कि वो मुल्क के लिए और आवाम के लिए और नौजवानों के लिए मुस्बत रोल किरदार जो है मुस्बत अपना किरदार अदा करें। मुस्बत किरदार अदा करें। हसन रज़ा, बहुत शुक्रिया आपका तफसील नगाह करने के लिए। सरबराह पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी शुजात हुसैन ने गौहर शहजाद को ऑर्गेनाइज़र एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लीगल विंग नामज़द कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। चौधरी शुजात हुसैन ने वकला के वफ़द से मुख्तलिफ कानूनी और सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया। इस बारे में मज़ीद जानते हैं लियाकत अली से। लियाकत, आगाह कीजिएगा, क्या तबादला ख्याल किया गया? मुस्लिम लीग के सदर शुजात हुसैन से आज वकला के वफ़द ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग लायकपुर एमसी सदर राना नईम सदर, नायब सदर लायकपुर एमसी गड़बड़ाए सदर साहिवाल डिस्ट्रिक्ट राना सुहेल भी इस मुलाकात में शरीक है, जबकि सेक्रेटरी जनरल पंजाब शाफी हुसैन भी इस मुलाकात में शरीक हुए। इस मौके पर ताकत मुस्लिम लीग के सदर शुजात हुसैन ने गौहर शहजाद को ऑर्गेनाइजर एंड इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लीगल विंग नामजद किया और उन्हें इस मौके पर बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जो है उनको अदा किया है। शुजात हुसैन ने वकला के वक्त से मुख्तलिफ कानूनी और सियासी मामला पर तबादला ख्याल भी किया है। आपका बहुत शुक्रिया लियाकत। अब कुछ बात करते हैं मौसम की। दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली के बाद आसमान पर सुरमई बादलों का राज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी का जोर भी टूट गया, जबकि हब्स की कैफियत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से 23 अगस्त तक वक्फे वक्फे से बारिश का भी इम्कान है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहा और गर्मी भी अपने रंग दिखाती रही, लेकिन इस वक्त आसमान पे हल्के हल्के बादलों का राज है और दरमियान में कुछ अर्सा के लिए वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ हलकों में बारिश भी होती रही, जिसकी वजह से मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया। लेकिन इस वक्त हब्स की कैफियत जो है वो बरकरार है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो शहर लाहौर में आज कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज्यादा से ज्यादा 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। अगर फजाई आलूदगी की बात करें तो शहर लाहौर फजाई आलूदगी में 6ठे नंबर पर आ चुका है। इस वक्त शहर लाहौर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 127 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर फजाई आलूदगी के लिहाज से शहर के दूसरे हिस्सों का जायजा लिया जाए तो अनारकली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 126 जबकि जोहर टाउन का एयर क्वालिटी इंडेक्स 118 रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से 23 अगस्त तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिशों का इम्कान भी है, जिसकी वजह से वासा हुकाम और दूसरे इंतजामी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है ताकि किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामात किए जा सके। दूसरी तरफ हवा में नमी का तनासुब जो है वो 48% है, जबकि हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम का हवाल बताने के लिए उसामा, शुक्रिया आपका। वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम हस्पताल अदम तवज्जुही का शिकार फार्मेसी का ठेका खत्म होने के बावजूद मुबैना तौर पर गैर कानूनी कब्जा शेख ज़ैद हॉस्पिटल की इंतजामिया ने
ने मुबैना तौर पर 4 करोड़ रुपए के बकायाजात वसूल नहीं किए। इंतज़ामिया के मुतअद्दिद नोटिस के बावजूद कोई पेशरफ नहीं हो सकी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम शेखजाद अस्पताल लाहौर जो है वो अदम तहजीक का शिकार नजर आ रहा है और फार्मेसी का ठेका खत्म होने के बावजूद जो है मुबैना तौर पर मिली बग से कब्जा जो है वो बरकरार रखा गया है। शेखजाद अस्पताल लाहौर ने फार्मेसी से मुबैना तौर पर 4 करोड़ रुपए बकायाजात भी वसूल करने हैं जो कि जानबूझकर वसूल नहीं किए जा रहे हैं और इंतजामिया के मुताबिक नोटिस पर कोई भी पेशरफ्त न हो सकी है। शेखजाद अस्पताल लाहौर में 2017 में 2 बरस के लिए फार्मेसी को ठेके पर दिया गया था और 2019 में ठेका खत्म होने के बावजूद फार्मेसी को अभी तक खाली नहीं करवाया गया है। अस्पताल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि फार्मेसी को मुतअद्दिद बार जो है वो फार्मेसी खाली करने के नोटिस जारी किए जा चुके हैं। जी आपका बहुत शुक्रिया सज्जाद। एलडीए टीमों की कार्रवाई मेन बुलेवर्ड पर वाक़ सदीक ट्रेड सेंटर का दफ्तर सील कर दिया गया। प्लाजा इंतजामिया के दफ्तर को गवर्नर्स कमेटी के अहकामात ना मानने पर सील किया गया। दुकानदारों ने बिजली और दीगर सर्विसेज मुसलसल बंद रखने की शिकायत कर रखी थी। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, अपडेट कीजिए। ये एलडीए की ग्रेवियंस कमेटी को सदीक ट्रेड सेंटर के जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से शिकायत मसूल हो रही थी कि मुबैना तौर पर जो सदीक ट्रेड सेंटर की इंतजामिया है उनकी तरफ से बिजली और दीगर सर्विसेज को मुसलसल बंद रखा जा रहा है। इसके साथ साथ सदीक ट्रेड सेंटर के खिलाफ इस सेंटर में मौजूद दुकानदारों ने मालकाना और जो किराएदार हैं उन्होंने भी शिकायत दर्ज करवाई थी। तो इन शिकायत पर अमल दरामद करते हुए अब एलडीए टीमों की जानिब से कार्रवाई की गई है और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर वाक़ सदीक ट्रेड सेंटर का दफ्तर सील कर दिया गया है। एलडीए के शोबा टाउन प्लानिंग 3 की जानिब से कार्रवाई करते हुए प्लाजे की इंतजामिया का दफ्तर सर्वमोहर कर दिया गया। ये दफ्तर सर्वमोहर करने की बुनियादी वजह यह है कि प्लाजा इंतजामिया की जानिब से एलडीए की ग्रेवियंस कमेटी के अहकामात नहीं माने गए। ग्रेवियंस कमेटी की जानिब से प्लाजा इंतजामिया को ये हिदायत जारी की गई थी कि जो दुकानदार और खा वो किराए पर हैं, ये मालकाना हकूक हैं उनके पास, उनको जो बुनियादी सहूलियात हैं उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। मगर सदीक ट्रेड सेंटर इंतजामिया की जानिब से ग्रेवियंस कमेटी की इन हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया गया, जिसकी बिना पर आज ये कार्रवाई की गई है और सदीक ट्रेड सेंटर का जो इंतजामिया का दफ्तर है उसको सर्वमोहर कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैनुल आबिदीन। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मनपसंद असातिज़ा को नवाजा जाने लगा। जूनियर असातिज़ा को अहम पोस्टों पर तैनात कर दिया गया। इंस्टीट्यूट हिस्ट्री के सीनियर फैकल्टी मेंबरान को नज़रअंदाज करके जूनियर असातिज़ा की तैनाती की गई। फैकल्टी मेंबरान ने गवर्नर चांसलर को ख़त लिख दिया। आपको बताएं, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मनपसंद असातिज़ा को नवाजा जाने लगा। जूनियर असातिज़ा को अहम पोस्टों पर तैनात कर दिया गया। इंस्टीट्यूट हिस्ट्री के सीनियर फैकल्टी मेंबरान को नज़रअंदाज करके जूनियर असातिज़ा की तैनाती की गई। फैकल्टी मेंबरान ने गवर्नर चांसलर को ख़त लिख दिया। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत मीटिंग कत्ल, इक़दाम कत्ल और अंधे कत्ल के मुकदमात की डिस्पोजल का जायज़ा लिया। अफसरान को थानों में तफ्तीशी अफसरान की हाज़िरी यकीनी बनाने की भी हिदायत की। सफाई और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए अफसरान को सख्त अहकामात दिए गए। तफसीलात जानते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। मुजाहिद, अपडेट कीजिए। मुजाहिद से इस हवाले से अपडेट लेंगे। अहम इजलास है, उस हवाले से आपको बता रहे हैं कि सफाई और सिक्योरिटी बेहतर बनाने के हवाले से इकदाम करने के अहकाम जारी किए गए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। इजलास के मनाज़र टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। थानों में तफ्तीशी ऑफिसर्स की हाज़िरी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी किए गए हैं, जबकि सफाई और सिक्योरिटी के बेहतर इंतज़ामात के हवाले से भी अहकामात जारी किए गए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कत्ल, इक़दाम कत्ल और अंधे कत्ल के हवाले से भी इक़दाम करने के अहकामात जारी किए गए हैं। सफाई और सिक्योरिटी को बेहतर बनाने के हवाले से भी अहकामात जारी किए गए हैं। मुजाहिद लतीफ़ से इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी मुजाहिद। आज बिल्कुल एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में मीटिंग हुई। तमाम डिविजनल एसपी, सर्कल डीएसपी इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और इंचार्ज
जेंडर सेल की शिरकत हुई। डॉक्टर अनूश मसूद ने कत्ल, इक़दाम कत्ल, ब्लाइंड मर्डर के मुकदमात के डिस्पोजल का जायजा लिया। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की अफसरान को थानों में तफ्तीशी अफसरान की हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत की गई। ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरवेश मसाइल, पेंडिंग रोड्स, इश्तिहारी मुलजमान की गिरफ्तारी में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। चलानी रेशो बेहतर ना बनाने वाले मुतअद्दिद सर्कल डीएसपीज और इंचार्ज को वार्निंग दी गई। तफ्तीशी अमल में नाकाइस दूर करने के लिए प्रोसिक्यूशन अफसरान की मुआवनत ली जाए, ऐसा कहना था एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का। तफ्तीशी अफसरान के साथ मुकदमात की जल्द यकसुई के लिए रोजाना मीटिंग को यकीनी बनाया जाए। मुतरक गैंग समेत इश्तिहारियों की गिरफ्तारी भी यकीनी बनाई जाए। शहरियों को मेरिट और बर वक्त इंसाफ की फराहमी अवलीन तरजीह है, ऐसा कहना था एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का। जी, ऐसा कहना था डॉक्टर अनूश मसूद का। मुजाहिद लतीफ़, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, टीपा का अर्बन डेवलपमेंट विंग फाल होने के बावजूद पार्किंग प्लाजों की फाइल बंद। शहर की मरकजी शाहराहों पर बढ़ती गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक के मसाइल में इजाफा। एलडीए ने टीपा को पार्किंग मसाइल के हल का टास्क सौंपा। टीपा की पार्किंग बनाने के लिए फीजिबिलिटी रिपोर्ट फाइलों तक महदूद हो गई। मज़ीद जानते हैं ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। ये शहर की मरकजी शाहराहों पर बढ़ती हुई गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक के बढ़ते जा रहे हैं। एलडीए की जानिब से टीपा को पार्किंग के मसाइल के हल का टास्क सौंपा गया और 4 पार्किंग प्लाजे टीपा के हवाले कर दिए गए, जबकि टीपा को मजीद पार्किंग बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी बनाने की हदायत जारी की गई, लेकिन ये मंसूबा भी दीगर मंसूबों की मानद फाइलों में महदूद होकर रह गया है और टीपा इंतजामिया को पार्किंग प्लाजे बनाने में हर प्लेटफॉर्म पे सुबकी का सामना करना पड़ा। टीपा ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 8 पार्किंग प्लाजों की तमीर की तजवीज दी थी। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बावजूद पीपीपी अथॉरिटी ने पार्किंग प्लाजे मंसूबे को हतमी शक्ल ना दी। इसके अलावा ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए बैंक से कर्ज लेकर पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा भी काम ना आया। ब्रिज फाइनेंसिंग के जरिए बैंक की जानिब से भी पार्किंग प्लाजों के लिए कर्ज ना दिया जा सका। यही वजह है कि एवाने अदल, हॉल रोड और अनारकली के मुकाम पर पार्किंग प्लाजे की तमीर का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। इसके अलावा सर्कुलर रोड, रेलवे स्टेशन और मुल्तान रोड पर भी